اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں، کریری ڈور اننت ناگ میں انکاؤنٹر جاری۔ بڑی خبر، کریری ڈور اننت ناگ میں انکاؤنٹر جاری۔ سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ جاری ہے انکاؤنٹر۔ 2 سے 3 ملیٹنٹوں کی موجودگی کا خدشہ، علاقے میں جاری ہے سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ بڑی خبر اس وقت کی کریری ڈور اننت ناگ سے آ رہی ہے، انکاؤنٹر جاری ہے، وہاں پر سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر جاری ہے۔ 2 سے 3 ملیٹنٹوں کی موجودگی کا خدشہ ہے، علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ بڑی خبر، کریری ڈورو اننت ناگ میں انکاؤنٹر اس وقت چل رہا ہے اور سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر جاری ہے۔ 2 سے 3 ملیٹنٹس کی موجودگی کا خدشہ ہے، علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ بی جے پی عام آدمی کے مدعوں اور ملک کی حالت سے دھیان ہٹانے کے لیے اب ملک کے مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے۔ انہوں نے لال قلعہ اور تاج محل جیسی تاریخی عمارتوں کو مندروں میں تبدیل کرنے کا بی جے پی کو چیلنج دیا۔ اننت ناگ کے بجبہاڑا علاقے کے دورے کے دوران مفتی نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے پر تلی ہے۔ اس کی بات ہے کہ جہاں بی جے پی سرکار لوگوں کو روزگار نہیں دے پا رہی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ہمارے ملک کے جو اثاثے ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں، جو ہمارا ملک بنگلہ دیش، پاکستان اور نیپال سے بھی پیچھے ہے اس وقت غربت میں، تو ایسے میں لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے ان کو مسلمانوں کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، اس میں تاج محل کی بات ہو رہی ہے، دوسری تیسری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ اس ملک کی دولت لوٹ کے باہر چلے گئے، چاہے وہ مالیہ ہے، چاہے مودی ہے، دوسرے کوئی مودی ہے، تو بجائے وہ دولت وہاں سے واپس لے آتے، یہ یہاں جو ہمارے مغلوں کے وقت میں اثاثے بنے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، قلعے بنے ہوئے ہیں، تاج محل بنا ہوئے ہیں، ان کو بگاڑنا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہندو مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں، آپس میں جھگڑا کرانا چاہتے ہیں۔ اگر ان میں دم ہے تو تاج محل جیسے جو اس قسم کے ہمارے پرانے لال قلعے جیسے، تو ان کو مندر بنا کے دکھا دے، پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس ملک کے اندر آئیں گے اس ملک کو دیکھنے کے لیے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ایل جی منوج سنہا کو آثار قدیمہ کی سائٹ پر پوجا کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اپنے پلوامہ دورے کے دوران میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے محبوبہ نے کہا کہ جموں کشمیر صدیوں سے مذہبی رواداری کے لیے مشہور ہے۔ ایل جی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں قانونی سرپرست ہی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ضلع اننت ناگ میں حال ہی میں آثار قدیمہ کے ایک مندر میں ہوئی پوجا میں ایل جی نے شرکت کر کے پوجا کی تھی اور اس کا محکمہ آثار قدیمہ نے نوٹس لیا ہے۔ اسٹیٹ کا ہیڈ ہو، وہ اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے، وہ کوئی مہنت نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی پجاری نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہنچ جائے تو آپ پوجا کرنے بیٹھ جاؤ۔ پوجا کرنے کا کام پجاریوں کا ہے، مسجد میں اذان دینے کا کام جو اذان دینے والا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ان کو جو ہے یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ سیکولرزم کا یہاں جو کلچر ہے ہمارا، اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہزاروں تعداد میں ہمارے جو لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ، جموں سے لوگ جو جیلوں میں بند ہیں، اتنے زیادہ تعداد ہے کہ آپ جموں کشمیر کے جیل بھر چکے ہیں، باہر لے کے جاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے الزام میں۔ تو یہاں جب گورنر صاحب خود ہی قانون توڑتے ہیں، جو رولز ہیں ریگولیشن سے ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ایک ایسی جگہ پہ پوجا کرتے ہیں جو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہماری سائٹ ہے جہاں پوجا کرنا جو منع ہے، تو جب وہ خود ہی قانون توڑیں گے تو باقی لوگوں کو کیا قانون سکھاتے؟ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کی ٹیم نے پلوامہ کے چوان کلان علاقے میں 2 ماہ قبل ہوئے انکاؤنٹر کے سلسلے میں جاری تحقیقات کے حوالے سے چھاپا مارا۔ این آئی اے نے چوان کلان میں موجود دارالعلوم پر چھاپا مارا اور تلاشی کارروائی انجام دی۔ انکاؤنٹر کے دوران ملیٹنٹوں نے دارالعلوم میں پناہ لی تھی۔ انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے تھے اور ایک کو زندہ پکڑ لیا گیا تھا۔ اس دارالعلوم کے سربراہ پہلے ہی پولیس حراست میں ہیں۔ سری نگر کی ایک سیشن عدالت نے آج کشمیری پنڈت ستیش ٹکو کے قتل میں سابق ملیٹنٹ فاروق احمد ڈار
उर्फ बिट्टा कराटे के खिलाफ एक दरख्वास्त पर समाअत उस वक्त मुलतवी कर दी जब दरख्वास्त गुजार के वकील ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की। इस केस की समाअत आज फर्स्ट एडिशनल सेशन जज श्रीनगर की अदालत में होनी थी। ताहम टिक्कू के खानदान की तरफ से पेश होने वाले वकील उत्सव बेंच ने सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की। ये इल्तवा बेंच के पहले एडिशनल सेशन जज श्रीनगर को लिखे गए खत के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम न किए जाने के बाद वो श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस मामले की अगली समाअत 23 मई को होगी। कुपवाड़ा में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2 रोज से ऑपरेशन थिएटर बंद है। इसकी वजह से दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला खवातीन को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। मरीजों को हंदवाड़ा या बारामूला रेफर किया जा रहा है। यह अमल दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला खातून के लिए सीधे मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। अगरचे मेगा हेल्थ मेला मुनक्किद करना खुश आइंद कदम है, मगर इस दौरान महकमे को इमरजेंसी मरीजों के लिए भी जरूरी इंतजामात करने चाहिए। महकमे की इस गफलत शारी से कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। किसी मुतबादिल इंतजाम के बगैर 2 रोज तक ऑपरेशन थिएटर बंद रखना दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला खवातीन के लिए कितना तकलीफ दह है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। थिएटर बंद करना पड़ा ताकि हम इसको स्टरलाइज पूरी तरह कर सकें, जिसको फ्यूमिगेशन करते हैं। एक चीज़ है कि वहाँ हमारा एक ही एनेस्थेटिस्ट है, डॉक्टर JM मीर साहब, तो वो दिन में कवर करते हैं, नाइट का अभी प्रोग्राम वहाँ नहीं है। तो डायरेक्टर साहब को भी ये अच्छी तरह पता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी एनेस्थेटिस्ट आए। एक और एनेस्थेटिस्ट कल ही उन्होंने भेजा है, उसने ज्वाइन भी किया यहाँ आज। तो हमारे SDH में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो कैंप के लिए हैं वो कुछ और एनेस्थेटिस्ट भी आ रहे हैं ताकि ये कैंप अच्छी तरह हो जाएगा। 4 थिएटर्स को पूरी तरह से तैयार किया है। उसमें से एक थिएटर हमने इट इज डेडिकेटेड फॉर आवर इमरजेंसी नेचर सर्जरीज। उसमें जो गायनी और ओबस की सर्जरीज है जैसे LSCS है, तो वो हम यही करेंगे। दैट इट विल नॉट गेट इफेक्टेड। तो उसमें पेशेंट्स को हम दिक्कतें पैदा नहीं करेंगे। 3 थिएटर्स हमने डेडिकेट किए हैं फॉर दिस हेल्थ मेगा हेल्थ कैंप, और एक थिएटर हमने इमरजेंसी को कैटर करने के लिए रखा है। श्रीनगर पुलिस ने मेड एजेंसी के जरिए धोखे की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 खातून मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल लाल बाजार श्रीनगर के मुजम्मिल हयात नामी शख्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करिश्मा मेड ब्यूरो के जरिए एक नौकरानी की खिदमत हासिल की और इस ब्यूरो ने अर्चना चौहान नामी मुलाजिमा को एजेंट रजनी झा के साथ उनके घर भेजा था। एजेंट को 1 साल की एडवांस की रकम 74,000 रुपए दी गई थी और फिर दोनों रकम के साथ फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों खवातीन को काजीगुंड इलाके से चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एहसन परदेसी ने कहा कि कश्मीर में शराब की नई रिटेल दुकानों का खोलना सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी है। परदेसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के स्कूलों के नजदीक शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती। उन्होंने कहा कि अथवाजन में स्कूल के नजदीक शराब की दुकान खोल दी गई है। में हाल ही में जो लिकर पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, जिसके जरिए वादी कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे रिटेल लाइसेंस जो है वो इशू की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी मजम्मत करती है और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करती है कि फिलफोर जो है ये लाइसेंस जो है ये रद्द की जाए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है कि किसी स्कूल के पास, किसी हॉस्पिटल के पास और बिलखुसूस हाईवे के पास एक लिकर शॉप जो है उसकी परमिशन नहीं दी जाती है। पत्थर चौक में जहां पे इन्होंने ये लिकर शॉप का लाइसेंस दिया है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक हमारा एक राउंड स्कूल DPS स्कूल है, जो एक को एजुकेशन स्कूल जो है, वहाँ हमारे बच्चे जाते हैं, वहाँ हमारी बच्चियाँ जाती हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी मजम्मत करती है और उम्मीद करती है कि जो सरकार है जो है कि वो इस बात पर गौर करेगी और जो ये अनवारंटेड जो ये रिटेल लिकर शॉप्स का जो ये उन्होंने इस सिलसिला यहाँ पे शुरू किया है। ये त्राल के मुतादिद इलाकों चुवा अलर, छांगतार और लरगाम में कल शाम शदीद ज़ालाबारी हुई है। इसकी वजह से मेवा बागात को नुकसान पहुंचा। आज महकमे हार्टिकल्चर की एक टीम ने HDO
गौहर अहमद की निगरानी में मुतासर इलाकों का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। काश्तकारों ने सरकार से उन्हें मदद फराहम करने की मांग की है। गुजार अम बगैर गुजार कहें पे दीतन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंटन दी कह मत गवर्नमेंट अपील कर असेसमेंट किया लगभग 5-10% इसका ये नुकसान है, तो फिर भी हमने उसको ये एडवाइजरी जारी की कि इस वक्त क्या करना है, इस फार्मर को क्या करना है कि ये नुकसान फिर ठीक हो जाएगा। मैनकोजिब 300 ग्राम पर 100 लीटर वाटर, उसके साथ मिलाना है यूरिया 200 ग्राम पर 100 लीटर वाटर, तो इसी का स्प्रे करना है, तो इसका ये हेल अप हो जाएगा और लीफ का भी और इसका फ्रूट का भी। शदीद जलाबारी से त्राल के नहर और खासीपुरा में सरसों की फसल और धान की पनेरी को काफी नुकसान पहुंचा। किसानों ने बताया कि वो अभी सरसों की फसल काटने में लगे थे। शदीद जलाबारी से फसल को शदीद नुकसान पहुंच गया है। उन्होंने महकमे ज़राअत के अफसरान से नुकसान का तखमीना लगाने और उन्हें मुआवजा फराहम करने की मांग की है। जबरदस्त नुकसान वोत तिलवोलस तजवानन ूंटन तो बिल्कुल नुकसान सपदो सही डोंट पे लगभग 1 घंटस तो हुकामस कर अपील कि लिहाजा मेहरबानी कर तो कह टीम या दिया नजर तो यह वुशा वात गरीबन गुरबतन कह फायदे 5 बजे पे लोगन डोंट खतरनाक तो डोंट खतरनाक गम कोर जबरदस्त नुकसान ये नहर खासपुर बस तो इतला कर सोजो कह टीम तो यह दिया ये नजर वजर ये तुलगोगलस वुलगोगलस ये थजवानन वजवानन जबरदस्त नुकसान नहर। ईद की शाम भुंज में दरियाए पुलिस में डूब जाने वाले 12 साल दामिन शेख की लाश आज हिंदुस्तानी हुक्काम के हवाले की गई। चकंदाबाग इलाके में पाकिस्तानी फौज और सिविल इंतजामिया ने दामिन की लाश को हिंदुस्तानी हुक्काम के हवाले किया। उसके बाद तमाम जरूरी लवाजमात को पूरा करके लाश को आखिरी रस्मात के लिए लवाहिकीन की सुपुर्द किया गया। महलूक के रिश्तेदारों ने दोनों हुकूमतों और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह कि कल शाम को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कुछ लोगों ने दामिन की लाश देखी थी। बाद में पुलिस और इंतजामिया ने लाश को अपनी तहवील में लिया और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। तस्वीर और दीगर तफसीलात की बिना पर दामिन के रिश्तेदारों ने पुंछ में जिला इंतजामिया से लाश वापस लाने के लिए राब्ता किया था। दामिन की लाश उसके गांव पहुंचते ही वहां सफ़े मातम बिछ गया। इसकी तदफीन के वक्त काफ़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। नहाते हुए बह गया था, तो उसी की डेड बॉडी जो है वो आज मिली है, कल शाम को मिली है उधर POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। तो उसी को रिसीव किया अभी हमने और उसको कोडल फॉर्मेलिटीज़ के लिए हमने पुलिस के हैंड ओवर किया है। उसके बाद जो है सीधा वो उनके घर जो है वो भेज दी जाएगी। तो ये बहुत फॉर्चुनेट था हमारे लिए कि हमें डेड बॉडी मिली। हमें थैंकफुल है हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT के भी और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के भी, जिन्होंने हमें ये बॉडी वापस दी। अभी हमें ये रिसीव हुई है आज की डेट में बॉडी। तो अभी हम यहाँ से बॉडी को ले जा रहे हैं वापस। तो अब हम अपने होम टाउन में इसको करेंगे पूरा जो भी होते हैं रीति रिवाज। तो हम थैंकफुल हैं मीडिया के भी, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा ज़मन यारीपुरा कुलगाम के बागात में आज सुबह एक नौजवान की लाश मिली। इसकी शनाख्त शाहिद अहमद मोची वल्द मोहम्मद अशरफ साकिना कई यारीपुरा के तौर की गई है। इस वाक़े से पूरे इलाके में खौफ दहशत का माहौल है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लाश का पोस्टमार्टम अंजाम देने के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया। बोई काल 5 बजे गई कोतरम फालानी पत लगभग फोन कर रात फोन रिसीव गसन टोटल कहें। रात 12 बजे कोर्क फोन हमसाय लड़कस अकिस तम वो तो दोपन ये गो फलान एरिया कुन यह तथ एरिया मन पे गई ना रात क्या गई सुबह पत तो सुबह पत वो पे जबन। और आगे बढ़ने से पहले एक अहम खबर आपको इस वक्त दे दें। बड़ी खबर, बिमना श्रीनगर में 4 हाइब्रिड मिलिटेंट गिरफ्तार। जी हां, श्रीनगर बिमना से 4 हाइब्रिड मिलिटेंट गिरफ्तार। TRF लश्कर तैयबा से मुंसलिक मिलिटेंट गिरफ्तार। अवंतीपुरा से लश्कर के 2 मुआविन गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। एक मुसद्दक़ इत्तला मिलने के बाद बिमना क्रॉसिंग पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पॉइंट पर अंजाम दी ये कार्रवाई। बिमना श्रीनगर में 4 हाइब्रिड मिलिटेंट गिरफ्तार। TRF लश्कर तैयबा से मुंसलिक मिलिटेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अवंतीपुरा से लश्कर के 2 मुआविन भी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद काबिल एतराज मवाद भी बरामद हुआ है। और एक मुसद्दक़ का इत्तला मिलने के बाद बिमना क्रॉसिंग पर यह कार्रवाई हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पॉइंट पर
कार्रवाई अंजाम दी। और आगे बढ़ेंगे। दुनिया हिंदुस्तान की क़यादत के लिए तैयार है और हिंदुस्तान को दुनिया की क़यादत के लिए तैयार रहना होगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्क्वेस्ट शालीमार में कोरोना वायरस, माजी, हाल और मुस्तकबिल के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। जितेंद्र सिंह ने मजीद कहा कि मुस्तकबिल की आलमी मईशत में हिंदुस्तान का अहम किरदार है और इसके लिए हमें स्टार्टअप पोटेंशियल के साथ तैयारी करनी होगी और इसके लिए जम्मू कश्मीर में गैर दरियाफ्त करदा सलाहियत मौजूद है जिसे दरियाफ्त करने की ज़रूरत है। इफ्तिताही तकरीब में श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीमतू, वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर प्रोफेसर NA गनाई, वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी जम्मू प्रोफेसर JP शर्मा, डायरेक्टर स्कीम सौरा और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के अलावा दीगर आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात इस मौके पर मौजूद थीं। कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया भर के मारूफ माहिरीन, मुहक्किक, नौजवान साइंसदानों और माहिरीन तालीम को मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है ताकि साइंटिफिक तरीके से कोरोना वायरस पर बात और इस पर गौर किया जा सके। रीच आउट टू द राइट काइंड ऑफ स्टार्टअप हंट, ना सिर्फ वो लोग जो हमारे तक पहुंचे लेकिन वो लोग जो इसके हकदार हैं, जिनमें वो कैपेसिटी है, एप्टीट्यूड है, पोटेंशियल है, लेकिन उनके पास ज़रिए नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनको हम तैयार कर सके। क्योंकि स्टार्टअप के साथ साथ सस्टेनेबल स्टार्टअप और हिंदुस्तान की इकॉनमी आने वाले वक्त में दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए इसलिए भी एक मिसाल बनेगी कि हमारे यहाँ जो और अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल जैसे डीप सी मिशन है, जो समुद्र के नीचे का सरमाया है, उसकी तरफ भी अब मोदी जी की सदारत में तवज्जो दी जाने लगी है। मरकजी हुकूमत ने 4000 करोड़ की DPR के साथ मुगल रोड पर टनल के काम को मंजूरी दी है। शोपियां और राजौरी के लोगों का ख्वाब पूरा होने की जानिब अहम पहल हुई है। शोपियां के लोगों में खुशी की लहर है। 8 किलोमीटर लंबी टनल जंसनाद से छतपानी तक तामीर की जाएगी। इससे राजौरी और शोपियां के दरमियान पूरे 12 महीनों तक राब्ता बना रहेगा। शोपियां के लोगों ने खास तौर पर कारोबारी हलकों ने इसका खैर मकदम करते हुए कम से कम मुद्दत में इसकी तामीर मुकम्मल करने की अपील की है। 444 जो है तो अक्सर बेशतर वो बंद ही रहती है। अगर ये टनल इस पे अगर काम जल्दी से शुरू हो जाएगा तो इसमें उसका मुतबादिल रोड भी बन जाएगा और ये टनल जो है ये 24/7 चालू रहेगी। हमारी जो देरियाना मांग थी तो ये पूरे होने जा रही है, तो इसलिए हम पूरे शोपियान के लोगों की तरफ से गवर्नर इंतजामिया का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। डोडा में मुबैना आयुष्मान घोटाला मामले में सिविल सोसाइटी अरकान और समाजी कारकुनों ने CMO डोडा पर कसूरवारों को बचाने की कोशिश का इल्जाम लगाया। CMO के मुताबिक आरोग्य मित्रा और CSC डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेटर की जानिब से फराहम करदा डेटा ADD ऑफिस में जमा कराया गया। जब न्यूज़ 18 ने आरोग्य मित्रा और CSC डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेटर के ताल्लुक से CMO के बयान पर मजीद मालूमात इकट्ठा की तो पता चला कि CSC ने सिर्फ 394 रजिस्ट्रेशन रवाना किए थे। बाकी इजाफा CMO ऑफिस की जानिब से किया गया। सिविल सोसाइटी अरकान और समाजी कारकुनों ने इस मामले की जामे जांच का मुतालबा किया। एंगल से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर सामने नजर आ रहा है। लोग क्यों नहीं चाहेंगे? लोग तो चाहते हैं कि असल चीज जो है वो लोगों तक पहुंचे, मगर पहुंचाएगा कौन? जब कोई आवाज उठाता है, सड़क पे उतरता है तो उसको बोलते हैं चलो जी अंदर बैठो, डीसी साहब से बात करो। क्या ये डीसी की नाक के नीचे और डीसी साहब को नहीं पता है? जिसने इंक्वायरी करनी है, जिसने कमिश्नर हेल्थ को लिखना है, जिसने कैबिनेट मिनिस्टर हेल्थ को लिखना है कि आयुष्मान के अंडर इतने बड़े स्कैंडल्स डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहे हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं इसको डॉक्टर को भी नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूं, मैं उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूं जिनके अंडर ये आयुष्मान भारत की स्कीम चल रही है, उनकी नाक के नीचे ये स्कैंडल्स हुआ है। लोग ये चाहते हैं कि जो कुछ भी है वो लोगों के सामने आए, लूप होल्स कहाँ है, गलती किसकी है, थोड़ी सी उनकी कम से कम यार सर्जिश हो। यहाँ पे कोविड जब शुरू हुआ 2020 में तो उस वक्त भी आप ओपनली झूठ बोलते हैं, आप मिसलीड करते हो एडमिनिस्ट्रेशन को भी, तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली होकर इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले। 8 शव्वाल उल मुकर्रम सानह इन्हदाम जन्नतुल बकी की बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर अंजुमन शरईशियान के एहतमाम से
बडगाम में एहतजाज हुआ। अंजुमन के आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़वी ने इन्हिदाम जन्नतुल बकी के पस पर्दा हुकूमत आले सऊद की फ़िक्र व ज़हनियत के मुख्तलिफ गोशों की वजाहत की। आगा हसन ने कहा कि अरब हुक्मरानों को सरजमीन अरब में सनम खानों और गिरजाघरों की तामीर पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और उनकी औलाद की कब्रों पर ज़रियात की तामीर गवारा नहीं। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा मज़ार बकी में मुनहदम करदा मुक़द्दसात की तामीर नौ और शान रफ्ता की बहाली के लिए फ़िक्रमंद है। आलम इस्लाम का ये मुतालबा है मज़ार बकी उसी तरह और तामीर होना चाहिए जिस तरह ये इन्हिदाम से पहले था। लिहाजा हम सारे इस बात पर जोर देते हैं और इस मुतालबे को तायीद करते हैं, जल्द से जल्द फिर से मज़ार बकी को तामीर किया जाए। डाटसरा त्राल से ताल्लुक़ रखने वाली दो आला तालीम याफ्ता लड़कियों रुक़ैया जान और सुबी जान ने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत डाटसरा इलाके में मशरूम यूनिट कायम किया। इन लड़कियों ने आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपना कारोबार शुरू करने को ही तरजीह दी। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे सैयद मंजूर के साथ बात करते हुए इन्होंने बताया कि वो मशरूम की काश्त से अच्छी खासी आमदनी हासिल कर रहे हैं। रुक़ैया जान ने उर्दू में पीजी और बीएड किया है। सुबी जान ने हिस्ट्री में पीजी और बीएड की डिग्री हासिल की। उन्होंने बताया कि वो अपने घर के अंदर ही अच्छा रोजगार कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को अपने यूनिट कायम करने की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि ये अच्छा काम है, घर में बैठकर हम हलाल की रोजी कमाई कर सकते हैं, खासकर लड़कियों के लिए है या जिन लड़कियों ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है उनका कंसेप्ट ये है कि अब नौकरी करनी है। ये दिमाग से निकालना है कि सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं पड़ना है, अगर हम कुछ अपने से करेंगे मुझे लगता है अच्छा काम है। तो हमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये मशरूम यूनिट प्रोवाइड किया। इसका काम हमने अपने घर में ही स्टार्ट किया, जो हमारे लिए एक रोजगार का जरिया बन गया। लड़कियों के लिए ये अच्छा काम है क्योंकि अपने घर में ही करना पड़ता है, बाहर नहीं निकलना पड़ता है। अखनूर के सब डिवीजन खोर के लोकी खंड में गैर कानूनी कानकरी जारी है। सुबह होते ही ट्रैक्टर ट्रालियों की आमद शुरू हो जाती है और रेत निकाली जाती है। यहाँ गहरे गड्ढे हो गए हैं जिसकी वजह से पानी की सतह काफी नीचे जाने का खतरा है। मकामी लोग गैर कानूनी कानकनी की वजह से परेशान हैं। लोगों ने गैर कानूनी कानकनी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हमारा पानी का जल स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। दूसरा, हमारी ज़मीनें जो पूरी ख़राब हो रही हैं, जहां बांध है और बांध टूटने का खतरा है। और तीसरा नंबर, जहां पुल जो है ये भी टूट रहा है रेता उठाने के कारण। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इस खनन पर, अवैध खनन पर ध्यान दें। मुझे आपके थ्रू ये न्यूज़ मिली है कि वहाँ पे इलीगल माइनिंग चल रही है, तो मैं कल एसएचओ साहब के साथ ये उनके साथ टीम बनाकर, हमारे वरिंदर जी भी हैं जो माइनिंग डिपार्टमेंट से हैं यहाँ पे, उसको पूरा चेक करते हैं, लोगों की स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं और नज़र भी रखते हैं लोगों के ऊपर कि किस टाइम पे वो इलीगल माइनिंग वहाँ पे कर रहे हैं। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मशहूर संतूर नवाज शिव कुमार शर्मा नहीं रहे। उनके इंतकाल पर दुनिया भर में ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। 1938 में जम्मू में पैदा होने वाले फनकार का मुंबई में 84 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो पिछले कुछ महीनों से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। जम्मू कश्मीर के रीजनल आले को आलमी सतह पर मकबूल बनाने में उनका बहुत बड़ा ताउन था। उन्होंने हरि प्रसाद चौरसिया के हमरा बॉलीवुड के कई फिल्मों जैसे सिलसिला, लम्हे और चांदनी वगैरह के लिए मौसीकी तरतीब देकर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इनकी मौत से मौसीकी की दुनिया में खला पैदा हो गया है। कई फनकारों ने जम्मू कश्मीर के इस लेजेंड संतूर नवाज को खराज अक़ीदत पेश किया है। जिन्होंने संतूर को उजागर किया है, जिन्होंने संतूर का नाम रोशन किया है, ऐसी हस्ती, ऐसा और किस स्वभाव के, कितना उनका अच्छा स्वभाव था, खासकर सिखाने के माध्यम से। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा जो है स्वर्ग में
स्वर्ग में जगह मिले, उनकी आत्मा है उसको शांति मिले। उनके कंट्रीब्यूशन को सदियों तक याद किया जाएगा और यहाँ के सारे फनकार, हिंदुस्तान के सारे फनकार, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के सारे फनकार इस गम में शरीक हैं और हम उनकी फैमिली को दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह ताला ये सदमा बर्दाश्त करने का तौफीक अता फरमाए। उन्होंने हमारे जो कश्मीरी सूफियाना मौसीकी है उसके अलावा संतूर के ऊपर जो क्लासिकल म्यूजिक का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में किया, परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हमारे लिए ये बहुत ही दुखद है कि एक संगीत जगत में हमने एक नायाब जो एक हीरा था या कलाकार कह लीजिए, उसको हमने खो दिया। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और यही प्रार्थना की ऐसे कलाकार जो हैं वो जल्द से जल्द पुनर्जन्म लेके फिर से इस पृथ्वी पर आएँ और अपने संगीत से लोगों को मंत्रमुग्ध करें। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा अगले माह शुरू होगी। उधर पवित्र गुफा में मुक़द्दस शिवलिंगम का एक वीडियो मंजर आम पर आया है। इसमें देखा जा सकता है कि मुक़द्दस शिवलिंगम का साइज इस मर्तबा काफ़ी बड़ा है। गुफा के आसपास अभी काफ़ी बर्फ नजर आ रही है। रवां बरस 30 जून से 11 मई तक यात्रा चलेगी। ये मई से जून तक ये यात्रा चलेगी। गुफा जिले के कगाम बॉयज हाई स्कूल में बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना है। स्कूल में 300 बच्चों के लिए सिर्फ एक बाथरूम है। असातिज़ा की कमी का मसला भी दरपेश है। कई मज़ामीन को पढ़ाने के लिए असातिज़ा मौजूद नहीं। स्कूल के लिए नई इमारत का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। DDC मेंबर नतनुसा एडवोकेट ज़हूर अहमद भी महकमे तालीम की इस बेहिसी पर खफा हैं। स्कूल के हेडमास्टर ने इस बात का एतराफ़ किया कि स्कूल में मुख्तलिफ सहूलियात की कमी है। तलबा, असातिज़ा और हेडमास्टर ने इस स्कूल में तमाम ज़रूरी सहूलियात मैसर रखने की अपील की। टीचर्स की बड़ी किल्लत है। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, 300 यहाँ पे रोल है स्टूडेंट्स का। अगर स्टूडेंट्स है, टीचर्स नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ही मखसूस टीचर्स हैं। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो टीचर्स की किल्लत है इसको फुलफिल किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो है, हमारे यंगस्टर्स है, हमारा फ्यूचर जो है वो मज़ीद ख़राब ना हो जाए। हमें हिस्ट्री टीचर्स कमी है। हम 10th क्लास के बच्चे हैं, हमें हिस्ट्री टीचर होते नहीं है, तो कभी हमें मेहनत करना पड़ता है। हेड मास्टर साहब की भी कमी है और हमें बाथरूम जो कि बॉयज़ 10th एक बाथरूम है बॉयज़ को भी और गर्ल्स को। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें बाथरूम दिए, 2-3 बाथरूम जो बॉयज़ को अलग हो और गर्ल्स को अलग हो। मुश्किलात है, टॉयलेट यहाँ पे नहीं है। हम यूज़ करते हैं एक ही टॉयलेट, बॉयज़ और गर्ल्स एक ही टॉयलेट यूज़ करते हैं। और दूसरी है हमें यहाँ पे ग्राउंड समूथ नहीं है, पोस्ट ठीक नहीं है। हमें बहुत मुश्किलात होते हैं यहाँ पे क्योंकि पढ़ाई ठीक से नहीं होती। एक ही टीचर 3-3 क्लास देते हैं एक साथ, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। सर टोटल स्टूडेंट्स 230 हैं इस वक्त और 10 क्लासों के लिए खाली 9 टीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं। कितने होने चाहिए आपके स्कूल में तकरीबन? इसमें कम से कम इसमें 14-15 टीचर्स होने चाहिए सर। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें, सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जून से शुरू होगी और इस बरस 30 जून से 11 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। आगे बढ़ेंगे। जिला तरक्याती काउंसिल रामबन की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद चांद ने अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने जिला रामबन में महकमे तालीम के अंदर अमले की शदीद किल्लत पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि जिला रामबन तालीमी एतबार से काफ़ी पीछे है। इसके बावजूद ये महकमा हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार है। उनका कहना है कि कई बार मुतल्लका हुक्काम से स्टाफ की किल्लत का मामला उजागर करने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका खमियाजा तलबा और तालिबात को भुगतना पड़ रहा है। बांडीपुरा का तालीमी जोन गुरेज जोनल एजुकेशन अफसर की सबकदोशी के बाद ZEO के बगैर है। जोनल एजुकेशन प्लानिंग अफसर का ओहदा 4 सालों से खाली है। टीचर्स एसोसिएशन गुरेज के सदर ने फौरी तौर पर गुरेज में ZEO और ZEPO को तैनात करने का मुतालबा किया है। गुरेज में ZEO की कुर्सी जो है खाली है और साथ ही साथ ZEPO की कुर्सी भी कई सालों से खाली है, जिसकी वजह से असातिज़ा को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
एजुकेशनल जोन गुरेज जो है एक सिक्योर्ड इलाका है, यहाँ जो असातिज़ा जो है दूर दूर इलाकों में काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन BK सिंह से गुजारिश करना चाहता हूँ कि तरजीही बुनियादों पर ZDO की कुर्सी को फिलअप किया जाए और साथ ही साथ ZDO को तैनात किया जाए ताकि असातिज़ा को मज़ीद तकलीफ और मसाइल का सामना न करना पड़े। करगिल जिले में द्रास की मशकू वादी ब्राउन बेयर के लिए मशहूर है। खासी तादाद में मकामी सयाह मशकू का रुख कर रहे हैं। मकामी ट्रैवल एजेंसियां ब्राउन बेयर को देखने के लिए शौकीन अफराद को इस पहाड़ी इलाके तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग यहां रात को भी रुकते हैं। शाम और सुबह के वक्त भूरे रंग के ये भालू घूमते रहते हैं। इन दिनों ये अपने बच्चों के साथ भी नजर आ रहे हैं। करगिल के नियाजुल हसन खान नामी स्कॉलर ब्राउन बेयर पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ भी बात की। और ब्राउन बेयर के बीच में इंटरेक्शन किस तरह का है, किस किस एरियाज में, लद्दाख के किस किस एरियाज में ब्राउन बेयर का कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ पे या कॉन्फ्लिक्ट कम है या लोगों का परसेप्शन टुवर्ड्स हिमालयन ब्राउन बेयर कम है, तो उसको किस तरह से हम पॉजिटिव इंटरेक्शन और इको टूरिज्म में प्रमोट कर सकते हैं। इको टूरिज्म इन द सेंस कि हम एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अगर किसी एरिया में पोटेंशियल है फॉर प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म विद रेस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ, सो उसको किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। दैट विल बी माई फाइनल क्रक्स ऑफ द। बख्तर ब्लॉक के BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन ने जिला इंतजामिया और बीकन हुक्काम से मुतालबा किया कि कोरकबल से लेकर जेड खुसी तक सड़क की फौरी मरम्मत की जाए। मुख्तियार अहमद के मुताबिक सड़क का तकरीबन 15 किलोमीटर हिस्सा इंतहाई खस्ता हाल है। इसकी वजह से मुसाफिरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। कोरकबल से लेकर जटकुशी तक जो है ये रोड का मुआयना किया। तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर जो रोड है ये बिल्कुल ही खराब है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, पैसेंजरों को बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। मैं आज DDC मैडम जो तस्लीमा बेगम है उनके साथ यहाँ ये रोड का मुआयना किया। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और BRO से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस रोड का काम शुरू किया जाए। वाली हिरनपट्टन के लोगों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि उनका ट्रांसफार्मर एक माह कबल खराब हुआ मगर आज तक ट्रांसफार्मर की मरम्मत नहीं की गई है। उन्होंने अपील की कि ट्रांसफार्मर जल्द ठीक करके गांव में नस्ब किया जाए ताकि लोगों को बिजली फराहम हो सके। उधर DO मीरगुंड ने यकीन दिलाया कि वो मुतल्लिका महकमे को आगाह करेंगे। DO पुलिस मीरगुंड की मदाखलत के बाद आवाम ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। अपने देरीना मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा करते हुए चिली कठुआ और मानो इलाके के लोगों ने मलिकपुरा गंदू में एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों की बड़ी तादाद ने मलिकपुरा में जमा होकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ठाटरी कुलथरान रोड को ब्लॉक कर इस SDM गंदू और SDHO SHO दीगर ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि इनके मुतालबात को कम से कम वक्त में पूरा किया जाएगा। सब जिला संभल में सफ़ेदों से निकलने वाली रुई से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि इलाके में बड़ी मकदार में रूसी सफ़ेदे मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि इस रुई से उनकी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। लोगों ने रूसी सफ़ेदे के इन दरख्तों को काटने की मांग की है। सारे मेन वजह इन्फेक्शन हटिस मज या बुथिस पे बिहत इंसानस ईज जलन वथान बुथिस मतलब कि यह ज्यादा इन्फेक्शन तुलान तमी मेहरबानी कर रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस फ्रस चो जल्दी अगर घर वालों चट फ्रस मगर ऑफिसन मज सरकारी जायन फ्रस इन जायन क्या षटान घर वाल चाहे गरीब अमीर तमो चट सारे फ्रस साफ कर गाँव मज बाकी जायन मगर इन ऑफिसन मज सरकारी फ्रस मेहरबानी कर अगर गवर्नमेंट कदम तुले कर जल्द से जल्द चटा इन फ्रसन तो आराम या आम लोगन या आराम। जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर हुकूमत ने कसीर रकम खर्च करके इंडोर स्टेडियम की तामीर अमल में लाई, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल इंडोर स्टेडियम में बिजली निज़ाम नस्ब करने में पूरी तरह नाकाम हो गया। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि राजपुरा के इंडोर स्टेडियम में बिजली और पानी की जैसी बुनियादी सहूलियात मैसर न होने से इंडोर स्टेडियम में खेल कूद की सरगर्मियां चालू करने में परेशानी आ रही है। आप देख सकते हो न लाइट का कोई इंतज़ाम है न पानी का कोई इंतज़ाम है। हमारी रिक्वेस्ट है आप अपने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशीरुल हक से और जो यहाँ सेक्रेटरी है इस जो स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स काउंसिल की नुज़रत मैम, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसमें जल्दी से जल्दी बिजली और पानी रेस्टोर करें। यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, ना तो यहाँ पे पानी है, और हम यहाँ पे खेलना आते हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, लाइट का, पानी का। बीजेपी पंचायत राज सेल के चेयरमैन सुखनंदन चौधरी ने मांग की है कि किसानों को बचाने के लिए तमाम आपाशी नहरों की सफाई की जाए। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि किस तरह अहम आपाशी नहरों के रख रखाव के बगैर की पानी जारी किया जा रहा है और वाटर रूट्स को मंजूरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गैर माकूल इंतजामात के चलते किसानों को नाउम्मीद कर दिया गया है। लद्दाख में सैकड़ों तलबा ने एहतजाज किया। यह एहतजाजी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में मुस्तकिल तौर पर वीसी तैनात करने की मांग कर रहे थे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गुना एसोसिएशन ने इस एहतजाज की हिमायत की। एहतजाजियों ने इंस्टीट्यूट में मुस्तकिल तौर पर वाइस चांसलर तैनात करने की मांग की है। आए कि आप सीएबीएस का या वाइस चांसलर के नाम पे आए या कि डायरेक्टर के नाम पे आए, तो हम डायरेक्टर के नाम पे आते तो हम इनकार करते हैं, हम इनकार उनको आने नहीं देते क्योंकि हमको डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है। हमने बोला कि वीसी चाहिए। आप वीसी की पोस्ट से आए हो तो वीसी के माध्यम से आए हो तो हम वेलकम करते हैं। कि सीएबीएस के जितने भी बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सीएबीएस किस माध्यम से बनाए, किस एम एंड ऑब्जेक्टिव से बनाए, उसी माध्यम से चलना है, ना कि वो हिंदी या इंग्लिश में जाए, ना कि दूसरे वे में जाए। पंडित नेहरू स्कूटीनला तेनेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट बुद्धिस्ट स्टडीज पंगता यूरोपिनले तेवे तेनेगा दक्षांगता ngala इंस्टीट्यूट सिगिन पिनले तेथिंगता डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस तोबले डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस थोप तेथिंग नंग लो nga tuk sukpa yang central government ne te sadi ka khongche se kho lasi jingman mafulte मथुल पासंग डिरिंग तेरेंगाता सन्नी लोप्ता खां योक्ता मा यमसन सोंगते गता ले। प्रेस क्लब जम्मू ने SIBA के इश्तराक से सहाफ़ियों के लिए एक हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया। जम्मू प्रेस क्लब के अहाते में मुनक्कदा कैंप में अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के नामवर डॉक्टरों ने सहाफ़ियों और उनके अहल खाना का मुफ्त मुआयना किया और उनमें अद्वियात तकसीम की। क्लब के नायब सदर ने कहा कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी तनाव भरी होती है, ऐसे में उन्हें मुस्तकिल तौर पर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। मुस्तफ़ीद सहाफ़ियों ने इस कैंप के लिए क्लब का शुक्रिया अदा किया। इसमें से हमारे फ्री बीपी, शुगर, अपना आइस का और गैस्ट्रो, फिजियोथेरेपी सभी का हमने कैंप लगाया आज। तो आज ये ऑर्गेनाइज किया प्रेस क्लब सर। काफ़ी रिस्पॉन्स है, काफ़ी मीडिया कर्मी आए हैं। इसमें हमें बड़ा थैंकफुल करना चाहेंगे अगर इतने बढ़ चढ़ के आए हुए हैं। तो ये नहीं है कि आज हम ये कैंप लगाएं, हम ये कोशिश यही है कि हर 2 मंथ या 1 मंथ में ये ज़रूर हम इनके साथ कैंप लगाते रहेंगे। यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप्स हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, और अगर उनकी अच्छी राय हमें पूरे दिन में क्या कुछ खाना चाहिए, किस तरीके का हमारा रहना सहना होना चाहिए, तो एक याद रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पत्रकारों के लिए और हमारे मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी एक हेल्प रहेगी अपनी जीवन शैली को ठीक करने में। ये टाइम बिंग ऐसे हेल्थ कैंप होने चाहिए ताकि जनरल जो हेल्थ है उसमें कोई इशू उनको पता लगता रहे और वो अपने उसको हेल्थ के बारे में जो अवेयर रहे। और ये जो जी मैंने भी अपना चेकअप कराया, बड़ा अच्छे से यहाँ पे चेकअप कराया, खासकर आँखों का और बीपी और शुगर वगैरह जो है बेसिक जो चेकअप था वो जो करवाया मैंने, जिसमें आँखों में दवाइयाँ वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल रही हैं और डॉक्टर से भी अच्छा कंसल्टेशन यहाँ पे। LHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए टूरिज्म फुनसक ताशिर जंस्कार में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। डिग्री कॉलेज जंस्कार ने मुख्तलिफ महकमों हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, महकमे जंगलात करगिल और गो ग्रीन जंस्कार के ताउन से इस मुहिम का इनकाद किया। समाजी व मजहबी तंजीमों, अवामी नुमाइंदों, तलबा और असातिज़ा ने मुहिम में हिस्सा लिया। 25,000 पौधे लगाने का मंसूबा है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने जंस्कार को ग्रीन बनाने में पद्मश्री चलत्रम चसजूर की कोशिशों का भी जिक्र किया। यही एक पौधे हैं जो आज के इस माहौल की तब्दीली के ज़माने में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहर को वो जज्ब करती है और ऑक्सीजन की एक तोहफा हमें देती है। और जब ये बड़े होते हैं तो लकड़ी लोगों के काम आता है। इनसे माहौलियात को फायदा ही फायदा है, घाटा कुछ भी नहीं है। प्लांटेशन ड्राइव जो है वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज नास्कर में। तो लास्ट ईयर भी हमने एक प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, सैपलिंग्स हमने प्लांट किया था और हम लास्ट 1 ईयर में देख रहे हैं कि 90% ऑफ द सैपलिंग्स जो है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं।
कि इंस्टीट्यूशनल एक प्लांटेशन का स्कीम होता है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, हमने बोला जी वो इस साल जो है ना वो डिग्री कॉलेज को जो जितना भी इनका मॉनिटरी होता होगा या प्लांटेशन की सैपलिंग की सूरत में होता है सारा कुछ जो है ना वो डिग्री कॉलेज की तरफ डाइवर्ट किया जाए। अदरवाइज हायर सेकेंडरी। आम आदमी पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हर्षदेव सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग तब्दीली चाहते हैं और इसलिए बड़ी तादाद में लोग आपका हाथ थाम रहे हैं। वो जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। उन्होंने हफ्ते को दिल्ली में आप में शमूलियत अख्तियार की थी। खासी तादाद में पार्टी कारकुनों ने जम्मू एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। सिंह ने कहा कि लोग अपने मसाइल के हल की खातिर यूटी में भी केजरीवाल मॉडल लागू करना चाहते हैं। जिला गांधरबल के मरीजों के लिए एक खुशखबरी है जो गुज़श्ता 2 सालों से मुख्तलिफ बीमारियों के लिए सर्जरी करवाने के मुंतज़िर हैं। हुकूमत की जानिब से एक हफ्ता तवील मेगा सर्जिकल कैंप के क़याम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल का इंतखाब किया गया है। इस कैंप के दौरान माहिर डॉक्टर्स मुख्तलिफ सर्जरियां करेंगे, जबकि मरीजों के साथ आने वाले अटेंडेंट के अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चीफ मेडिकल अफसर गांधरबल ने लोगों पर जोर दिया कि वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और अपने करीबी तिब्बी मरकज़ से रजिस्ट्रेशन कराएं। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।